Hello friends, good morning. So in this lecture we discuss loss of biodiversity. So this is very normal and but obvious that new species which is to be added into the biosphere, it takes very long time, isn't it? बहुत लंबा समय लगता है कोई भी नए स्पीसीज को बनने में, स्पीशिएशन होने में, राइट? But this is very obvious and there is no doubt at all for their loss from the biodiversity. When किसी भी स्पीसीज को वहां से डिसअपियर होने में, एक्सटिंक्ट होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है. बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन डिसअपियर होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, राइट? And this loss of the biodiversity is very painful for ecosystem, very painful for us as well as for the other living creatures on this planet also, right? So if we talk about the biological wealth of our planet, so it declines very rapidly, and the responsible animal for this is the human. Most of the time the human activities, different activities of the human is finally responsible for declining the biodiversity of this planet, right? There is a very good example here. The colonization of the tropical Pacific island, by humans, it lost more than 2000 species of the native birds from that place. See, this is very alarming data. So just colonization on the tropical Pacific island, it lost, or we lost 2000 species of the native bird. Not lost actually, they get extinct actually, right? They extinct. So the IUCN, there is a red data book or red list is there, in which normally the extinct organisms has been kept recorded in that red data book or the list. So according to the 2004 list of the red data book, approximately 784 species has been extinct in the last 500 years. बस 500 साल में कितने हुए? 784. 784 species has been lost. That includes 338 vertebrates, 359 invertebrates, 87 plants, right? कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम रिसेंट एक्सटिंक्शन का देखते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डोडो extinct from the Mauritius, I mean from the entire earth. It was there in the Mauritius, dodo, but now no more, completely extinct. Quagga from the Africa, quagga अफ्रीका में होता था, extinct हो गया. थैलासीन ऑस्ट्रेलिया में होता था, extinct हो गया. स्टीलर्स सी काउ रसिया में, extinct. Recent extinction के सभी एग्जाम्पल हैं. These are the very important examples. Okay. 3 species of the tiger we lost, extinct: Bali, Javan and Caspian. Bali, Javan and Caspian, these 3 species, subspecies of the tigers we lost from the earth, or we lost from our planet, extinct हो गए ये सभी. These are the recent extinction. Last 20 years की यदि हम बात करें, last 20 years alone we have witnessed to disappear 27 species. लास्ट 20 साल में हमने 27 स्पीसीज को खो दिए, अर्थ पर से एक्सटिंक्ट हो गए, राइट? तो इन सब को यदि आप एनालाइज करो, केयरफुल एनालिसिस, इट शोज दैट दीज एक्सटिंक्शंस आर नॉट रैंडम. ये रैंडम नहीं होती है. एक्सटिंक्शंस आर नॉट रैंडम. कुछ टेंडम पैटर्न में एक्सटिंक्शन होती है, राइट? जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियंस appear to be more vulnerable to the extinction. मतलब एक्सटिंक्शन हमें पता नहीं चलता है, हो सकता है हमें पता नहीं चल रहा हो ह्यूमन को, बट they are following a very tandem aspect of extinction, right? And
This extinction, in fact, is, I mean, 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction nowadays, right? 15,500 स्पीसीज, इतने को तो थ्रेट है कि कभी इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल्स, राइट, ये दोनों इसमें आते हैं, थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन दे आर हैविंग। प्रेजेंटली यदि हम बात करें 12% ऑफ ऑल बर्ड्स, 12% of all birds, 23% of all mammals, 32% of all amphibians, they are at the verge of, I mean, they are having threat for the extinction. 31% of all gymnosperm species in the world are facing the threat for the extinction, right? See, अब यहाँ पे 23% यदि मैमल्स है तो मैमल्स में हम भी आ सकते हैं, ह्यूमन भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? So we are also getting a threat of extinction, danger of extinction. ये एक्सटेंशन हम यदि क्वेश्चन करें अपने आप से, क्या ये नया है, अभी ये एक्सटेंशन हो रहा है, पहले नहीं होता था? तो ऐसा नहीं है, एक्सटेंशन पहले भी होते थे। अर्थ या लाइफ अर्थ पे जब से बनी है, मोर देन 3.2 बिलियन ईयर्स, राइट, और मोर देन 3 बिलियन ईयर्स जो लाइफ की इवोल्यूशन हुई है अर्थ पे, फ्रॉम देन ओनली the 5 episodes of mass extinction already took place on the earth. 5 बड़े बड़े extinction, 5 episodes of the mass extinction already it was there on the earth. And now the extinction, what the extinction is taking place is the 6th episode. This is the 6th episode of the extinction. एंड लेकिन इस एक्सटेंशन में जो 6th एपिसोड एक्सटेंशन की हो रही है, इसमें फर्क क्या है कि बहुत फास्ट है, दिस इज वेरी वेरी फास्ट। पिछले एक्सटेंशन से यदि आप बात करो तो ये 100 से लेके 1000 टाइम्स तक, तो 100 से लेके 1000 टाइम्स तक ये एक्सटेंशन फास्ट है ये, ओके। 100 से लेके 1000 टाइम्स तक ये फास्टर होते हैं अभी जो 6th एक्सटेंशन जो हो रही है, ओके। तो इकोलॉजिस्ट की एक एक ऐसा अजम्पशन है, यदि इसी रेट से एक्सटिंक्शन होते रहा तो हाफ ऑफ द अर्थ स्पीसीज, जितने भी अर्थ पे स्पीसीज है, हाफ ऑफ द अर्थ स्पीसीज दे माइट एक्सटिंक्ट इन द कमिंग 100 ईयर्स। आने वाले 100 साल में ये खत्म हो सकते हैं, राइट। 6th एपिसोड बहुत बहुत फास्ट है, 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन दैट ऑफ द प्री ह्यूमन टाइम्स, है ना। ह्यूमन के आने से पहले भी एक्सटिंक्शन होते थे, ऐसा नहीं कि नहीं होते थे, है ना। ओके, ह्यूमन तो बहुत लेट से आया है अर्थ पे, राइट, बट वो सभी स्लो थे। बट अभी जो ह्यूमन के आने के बाद एक्सटिंक्शन हो रही है, 6th एक्सटिंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज 100 to 1000 टाइम्स फास्टर, राइट, ये काफी फास्ट है, इजंट इट? ओके, सो यदि जनरली हम बात करें कि भाई बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है तो हमको क्या प्रॉब्लम है उससे, तो वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स एक्चुअली, नोइंगली अननोइंगली वी आर लूजिंग मेनी मोर थिंग्स, राइट। ओके, तो 3 यहाँ पे अलग अलग जो जो लॉस हो रहे हैं उसके जो इफेक्ट हैं, वो पहला इफेक्ट लिख रहा है डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन, राइट। प्रोडक्टिविटी प्लांट की बहुत कम हो सकती है धीरे धीरे धीरे, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट होते हैं सब कुछ, right? Then it may lead to the lowered resistance to the environmental disturbance such as drought, flood, etc. etc. है ना। रेजिस्टेंस पावर कम हो जाएगी यदि बायोडाइवर्सिटी नहीं रही, एक्सटिंक्शन इस तरह से होते रहा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होते रही तो। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन द सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस, राइट, वेरिएबल होगा, जैसे टेम्परेचर, वाटर यूज, डिसीज साइकिल, ये सभी वेरिएबल होगा, कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो ये सभी प्रोडक्टिविटी, ये सभी, अब किसी साल कुछ बहुत ज्यादा हो गई प्रोडक्टिविटी, किसी साल बहुत कम हो गई प्रोडक्टिविटी, सो नो सच पैटर्न वुड बी देयर, राइट। तो these are the some general threats or some general we can say the outcomes of the loss of the biodiversity or problems of the loss of biodiversity, general यहाँ पे दिया। Then we have a question that why this biodiversity has been lost
or what are the different causes for the causes responsible for the loss of the biodiversity, right? So here the rate of the species extinction is no doubt very accelerated nowadays, these days, right? And world is facing now very dangerous threat for the biosphere due to the loss of the biodiversity, and the major animal or the major responsible animal for this loss of biodiversity is human only, right? So human is the main culprit for this loss of the biodiversity or different human activities. So there are four major causes which are responsible for the loss of the biodiversity. चार अलग-अलग cause, जिसको हम लोग एविल क्वार्टेट भी बोलते हैं, द एविल क्वार्टेट। चार अलग-अलग कारण हैं जो बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए जिम्मेवार हैं। विल डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट इज द लॉस ऑफ हैबिटेट। पहला जो हम देखते हैं कि हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन, ये दो चीजें जो ह्यूमन करता है, राइट? उससे हमारे बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा एक्चुअली मोस्ट जो डेंजरस एक्टिविटी है वो यही है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट cause driving the animals and plants to extinct. The most dramatic example of habitat loss comes from the tropical rainforest. Tropical rainforest में हम देखें तो बहुत ड्रामेटिक एग्जाम्पल हमको मिलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे है कि just this is the data कि once more than 14% of the Earth's area was covered by the ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और अब जो है वो केवल 6% है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बची है। कितनी? ओनली 6%। When these रेन फॉरेस्ट अर्लियर इट वाज 14%, सी अब बचा है कितना? 6%। तो देख लो ह्यूमन एक्टिविटी से क्या हुआ, कितने 8% को खत्म कर डाला। तो वहां पे जो एनिमल रह रहे थे, जो प्लांट रह रहे थे, वो क्या हो गए? धीरे धीरे काफी सारे उसमें से खत्म हो गए, राइट? ओके, सो दिस डिस्ट्रक्शन इज वेरी फास्ट सर्टेनली, राइट? यहाँ पे एक दूसरा डेटा दे रहा है कि जब तक में आप ये चैप्टर पढ़ के खत्म करोगे, ऑलमोस्ट 1000 मोर हेक्टेयर्स ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। सी इमेजिन द 100 or more than 100 hectares of the rainforest has been lost by finish the reading of this chapter. एक घंटे यदि हम लें तो एक घंटे में 1000 हेक्टेयर या उससे ज्यादा रेन फॉरेस्ट को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसको हम लोग लंग्स ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं, राइट? लगभग आगे हम पढ़ेंगे 20 से 30%, 30% आई थिंक ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमको देता है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड लंग्स ऑफ द प्लेनेट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट नॉर्मली यहाँ पे आसपास में जो है दे डिस्ट्रॉय दिस रेन फॉरेस्ट फॉर द फार्मिंग, एंड फार्मिंग भी किसकी? सोयाबीन की फार्मिंग के लिए काफ़ी सारे अमेज़न रेन फॉरेस्ट को वहाँ से डिस्ट्रॉय किया और उसको खेती के लायक फार्म बनाया, राइट? जिसमें कि प्रोबेबली मिलियंस ऑफ स्पीसीज बीइंग द होम होगा, मिलियंस ऑफ स्पीसीज के वहाँ पे घर रहे होंगे, राइट? अपार्ट फ्रॉम द सोयाबीन फार्मिंग, they also convert these forest into the grasslands for the grazing animals, the beef cattle के लिए, जो beef cattles होते हैं उसको खिलाने के लिए वहाँ पे grassland बनाते हैं, राइट? ये दो मेजर कॉज है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन के लिए, एक सोयाबीन, राइट, की फार्मिंग, एंड अनदर इज द ग्रासलैंड फॉर रेजिंग द बीफ कैटल, ग्रासलैंड फॉर रेजिंग द बीफ कैटल। ओके, इसके अलावे जो डेंजर है, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट की से डिग्रेडेशन होती है, दैट इज द पॉल्यूशन, राइट? अनदर थ्रेट, पॉल्यूशन सर्वाइवल पे काफी सारे स्पीसीज के बहुत एडवर्स इफेक्ट डालता है ये। So when the large habitat are broken up, so this is the one thing, right? यहाँ तक. But many times what happens, we are not destroying the forest to a large area, but we are
setting some industries or some plants in some part of the forest in patches, छोटे छोटे पैचेस में हम वहाँ पे सपोज ये बड़ा सा ये फॉरेस्ट है और यहाँ पे आपने यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है ना इन सब जगह पे, तो अब क्या होगा यहाँ पे कि जो फ्रैगमेंट्स में आपने यहाँ पे कुछ ह्यूमन एक्टिविटी शुरू करी तो काफ़ी सारे बर्ड्स, काफ़ी सारे एनिमल्स, राइट, जो कि काफ़ी बड़े एरिया में रहते हैं, उसको बहुत बड़ा सा एरिया चाहिए, उसका हैबिटेट बहुत बड़ा है. नाउ दे स्लोली यू नो away from this area and finally at the end they disappear, they can extinct. Migratory birds, बहुत बार क्या होता है migratory birds migrate करके आते हैं लेकिन आप उसको बहुत बड़ा सा एरिया चाहिए, राइट, तो वहां पे फिर वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो. तो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, स्मॉल फ्रेगमेंटेशन. सो इफ द हैबिटेट हैज बीन ब्रोकन अप into the small fragments due to various human activities, mammals, birds, they require the large territories, and certain animals with migratory habitat are badly affected, that leading to the population declines, right? So fragmentation that leads to the extinction also, habitat loss as well as the fragmentation, right? Second is the over exploitation. सी ओवर एक्सप्लॉयटेशन ह्यूमन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इनिशियली वी आर नीडी, बट जब नीड पूरी हो जाए तो हम ग्रीडी हो जाते हैं, राइट. नीड टर्न्स इनटू द ग्रीड, राइट, कि और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए, राइट. सो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज टेक्स प्लेस, राइट. ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगती है नेचुरल रिसोर्सेज की, राइट. सो ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन मेनी स्पीसीज गेट्स एक्सटिंक्ट, राइट. एक डेटा यहाँ पे दे रहा है, इन द लास्ट 500 ईयर्स स्टीलर सी काव एंड द पैसेंजर पिजन, ये दो ऐसे एनिमल्स हैं जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन के चलते खत्म हुआ है इस अर्थ पर से, राइट. वी लॉस्ट द स्टीलर सी काव एंड द पैसेंजर पिजन ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन. प्रेजेंटली हम बात करें तो मेनी मरीन फिशेस पॉपुलेशंस अराउंड द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड, तो ये भी क्या इंडेंजर है, इंडेंजरिंग द continued existence of some commercially important species. ओवर एक्सप्लॉयटेशन से खत्म होते हैं. अब थ्रेट है किसके ऊपर, तो मरीन फिशेस के ऊपर. ऑलराइट, ओके. थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज द एलियन स्पीसीज इंट्रोडक्शन ऑफ द एलियन स्पीसीज और एलियन स्पीसीज इन्वेजन. एलियन स्पीसीज क्या होते हैं, जो हमारे लोकल जगह पे नहीं होते हैं या जो हमारे स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे नहीं होते हैं और वो बाहर से कहीं से आता है. दो स्पीसीज आर कॉल्ड एलियन स्पीसीज, राइट. तो एलियन स्पीसीज मेनी ए टाइम्स डेलिबरेटली हम उसको लाते हैं और बहुत बार अनइंटेंशनली भी लाते हैं, राइट. जैसे हम बात करें कांग्रेस ग्रास, हमने पढ़ा है पहले भी, कांग्रेस ग्रास, राइट. ये हमारे साथ वीट में, जब हम 1950-60 में वीट इंपोर्ट करते थे दूसरे कंट्रीज से, तो वीट के साथ आ गया कांग्रेस ग्रास, राइट. तो अनइंटेंशनल हुआ, right. So the introduction or the invasion that causes decline or many times extinction of the indigenous species, right. Invasion, so indigenous species खत्म होने लगते हैं. जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, इसी के एग्जांपल को लेके हम आगे चलें. नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका. ये सब ध्यान रखना, पूछेगा एग्जाम में ऐसे ही. लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका lead to eventually the extinction of the ecologically unique assemblage of 200 species of the cichlid fish in the lake, right. नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया तो 200 species of the cichlid fish has been extinct, more than that, okay. कुछ और एग्जांपल जो बहुत फेमिलियर हैं हम लोग, दैट कैरोट ग्रास या फिर इसको कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, दैट इज पार्थेनियम, ओके. दूसरा लैंटाना, वाटर हाइसिंथ जिसको इकॉर्निया, पिस्टिया भी हम लोग बोलते हैं, राइट. सो दे आर द एलियन स्पीसीज, एक्सोटिक स्पीसीज जो हमारे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा हार्म किया. जैसे इकॉर्निया की हम बात करें, दिस इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, है ना. इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं ना. क्यों, तो वहाँ पे क्या होते हैं कि पॉन्ड्स बहुत होते हैं, दे ग्रो इन द पॉन्ड्स वेरी रैपिडली एंड दे कवर द इंटायर पॉन्ड
एंड दे इंक्रीज द बीओडी. बीओडी को काफी बढ़ा देता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को, जिससे वहाँ पे फिश या अदर एक्वेटिक एनिमल दे डाई, राइट. तो बहुत ये वहाँ पे हार्म पहुंचाता है, इकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ. तो इस तरह पार्थेनियम, लेंटाना, राइट, दीज आर द alien species and they lead to the extinction of many more species actually also. Okay, some recent illegal introduction of African catfish, which is called Clarius garipinus, which introduced into the Indian rivers and ponds, and they lead to the threat of the indigenous catfish in India, right? इंडिया में यहाँ पे अफ्रीकन कैटफिश को हम इंट्रोड्यूस किए, राइट. तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा इंडिजिनस कैटफिश की पॉपुलेशन है आर रिवर्स में, वो खत्म हो रही है धीरे धीरे. सो दिस इज द रिसेंट एग्जांपल, ओके, of the introduction of the alien species invasion and how they are threat to the catfish of the indigenous species, right. Fourth is the co-extinction. चौथा को एक्सटिंक्शन है, मतलब साथ साथ एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. इसके कैसे हैं कि मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, टू और मोर देन टू स्पीसीज इवॉल्व साइमल्टेनियसली, साइड बाय साइड, इंटरडिपेंडेंसी, म्यूचुअलिज्म करते हुए वो आपस में इवॉल्व करते हैं. दोनों में बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है, राइट. तो यदि उसमें से एक स्पीसीज बाय द वे किसी भी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया, तो दूसरा अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाता है, क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट था पूरा का पूरा, राइट. सो दिस इज कॉल्ड को एक्सटिंक्शंस, right. So when a species become extinct, the plant or the animal species associated with it in an obligatory way also becomes extinct, right. जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है. when fish species, host fish species become extinct, its unique assemblage of the parasite also meets the same fate. जो पैरासाइट वहाँ पे यूनिक असेंबलेज है वो भी खत्म हो जाएगी, पैरासाइट भी. another example is the case of co-evolution of the plant pollinator, plant and insect, right. यदि कुछ ऐसे इंसेक्ट हो जो एक्सटिंक्ट हो गए and they were responsible for the pollination of certain plant, तो धीरे धीरे वो प्लांट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी पॉलिनेटर के नहीं होने से, राइट. अदरवाइज दूसरे एग्जांपल हम ले सकते हैं, बहुत सारे म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होते हैं, म्यूचुअलिज्म होते हैं, उसमें से एक स्पीसीज खत्म हुआ, एक्सटिंक्ट हुआ, तो अनदर विल एक्सटिंक्ट ऑटोमेटिकली, राइट, because both are dependent upon each other. So this is the co-extinction, right. We many times we are not knowing how many of them are interdependent to each other, and knowingly unknowingly one species gets extinct, so other will automatically get extinct. Okay, all right. So that's it for the today's class. If you have any question, you can ask me the question. I'll answer those questions. Thank you.